کرتے ہیں. آئے خداون کا شکر ادا کریں گے ہم اور اپنے آپ کو اس کی حضوری میں لے کر آئیں گے اور اس کے فضل کے لیے اور اس بڑے پریویلیج کے لیے جو اس نے ہمیں بخشا کہ ہم اس کے پاس آئیں اور اس کے نام کی ثنا گائیں اور اس کی مہما کریں اور اس کو بڑھائیں اور اس کا اونچا کریں اور اس کو سراہیں اور اس کی تعریف کریں اور اس کو سجدہ کریں اور اس کی حمد و ثنا کریں اور اس کی عبادت کریں اور اسی کے نام کو ہم سراہیں گے اور اسی کی تعریف کے لیے اور اسی کے سجدے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں. آئے اس کا شکر ادا کریں کہ ہمارا خدا سب ناموں سے اس کا نام سب ناموں سے زیادہ اعلیٰ ہے. وہی اول آخر، وہی ابتدار انتہا ہے، وہی ہمارا زور ہماری قوت ہے. آئے خداوند کا شکر ادا کریں. پریز دی لارڈ. یس لارڈ ہیلیلویا. اور آئے خداوند کے حضوری میں جھکیں گے اور ہم چاہیں گے کہ خداوند آج ہمیں اپنا جو اپنے ڈر میں، اپنے خوف میں، اپنی محبت میں ہمیں بڑھائے اور یہ نعمت جو ہے، یہ جو خداوند ہمارے اندر ڈالنا چاہتا ہے، ہمارے اندر انڈیلنا چاہتا ہے کہ ہم اس میں بڑھیں، اس میں ترقی کریں تاکہ ہم ہر بدی سے، ہر گناہ سے اور ہر ظلم سے، اور ہر ناراستی سے اور ہر طرح کی کڑواہٹ سے، ہر طرح کی نفرت سے ہم اس کو دور کرتے چلے جائیں، اس کا ڈر اور خوف میں بڑھتے ہوئے. آئے خداوند سے مانگیں گے کہ خداوند تو بخش دے کہ اب آپ خداوند آج یہ جو نعمت ہے اب آپ میری زندگی میں خداوند کثرت سے کام کرے تاکہ میں ہر طرح کی بدی سے دور رہ سکوں اور تاکہ میں ہر طرح کی بدی پر غالب آ سکوں، تجھ سے محبت رکھتے ہوئے، تجھ سے پیار کرتے ہوئے، تیری چاہت میں، تیرے پیار میں خداوند اب آپ خداوند ہر اس بدی پر غالب آ سکوں، تیرا ڈر، تیرا خوف مانتے ہوئے باپ. آئے خداوند کا شکر ادا کرے اور ہم چاہیں گے کہ خداوند کثرت سے ہم سب پورے گروپ پر اپنے پیار اور محبت کو اور اپنے اس خوف کو جو اس سے محبت رکھنے کی بنا پر ہمارے اندر آتا ہے، ہم اسی خوف کو اپنے اندر لیں گے تاکہ ہم اس میں بڑھ سکیں اور اس میں قائم رہ سکیں اور ہم اس میں پیوست ہو سکیں اور ہم اس میں جڑ پکڑ سکیں اور ہم دشمن کا ستیہ ناش کر سکیں اور ہم دشمن کے پھاٹکوں پر چڑھ سکیں اور ہم دشمن کو اپنے پاؤں پر رونتے چلے جائیں اور ہم دشمن کے ہر تیر کو کند اور فیل کر دیں. آئے خداوند کے ایسے اس کی دلیری کو اور ایسی فتح کو ہم اس کے یسوع نام سے لیں گے اور جائیں گے. خداوند آج گہرے طور پر ہماری زندگی میں کام کرے اور اپنے نام کو عزت و جلال بخشے. آئے خداوند کا شکر ادا کریں گے کہ خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ اب آپ تو یہاں پر موجود ہے. آئے اس کی موجودگی جب یہاں پر اپنے کلام کے مطابق یہاں پر موجود ہے تو ہم خدائے پاک روح کو اجازت دیتے ہیں کہ پاک روح آئے اور ہمارے اس گروپ میں بڑے کثرت سے، بڑی زور سے کام کرے اور اپنی آگ، پاک آگ، پیوریفائی کرنے والی، سینٹیفائی کرنے والی وہ آگ اب آپ آج ہمارے اندر لگ جائے. وہ آج وہ ہولی فائر ہماری نس نس میں، رگ رگ میں آ جائے یسوع مسیح کے نام سے. آج وہ آگ جو ہمارے اندر وہ لگانا چاہتا ہے وہ پاک روح کے وسیلہ سے، اس کی آگ کے وسیلہ سے ہمارے اندر لگ جائے تاکہ ہماری ہر طرح کی خودی اس کے آگ کے وسیلہ سے جل جائے، بھسم ہو جائے اور ہم اس میں زور آور ہو جائیں اور ہم اس میں آگے بڑھیں. آئے خداوند کے پاک روح کو، اس کے تسلسل ہولڈ کو اس پورے گروپ میں یسوع مسیح کے نام سے مانگیں گے. یس مائی لارڈ. خداوند کا شکر، اس کی تعریف اور ستائش کرتے ہیں اور ہم ساج راج یسوع کے نام کو دیتے ہیں. خداوند کا شکر کرتے ہیں اور خاص طور پر سارے پروگرام کو، ساری میٹنگ کو پریزائڈ کرنے گیتوں کے گیت گانے والوں زندگیوں کو اور میٹنگ اور کلام پڑھنے والی زندگیوں کو اور کلام سنانے والی زندگی کو ہم اس کے ہولڈ میں دے دیتے ہیں. پاک روح کا تسلسل ہولڈ چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خداوند کا پورا مکمل ہولڈ اور اس کی پوری گرفت، اس کی جو پاک روح کی جو پوری گرفت ہے وہ ہمارے پورے اس گروپ پر، اس میٹنگ پر رہے. اور ہم چاہیں گے خدائے پاک روح آئے اور مداخلت کرے، ہماری اس میٹنگ میں انٹرفیئر کرے، آئے اور اپنی موجودگی کو ہمارے درمیان ظاہر کرے اور ہم میں سے ہر ایک اس کی حضوری سے، اس کی موجودگی سے خوشی اور شادمانی کو حاصل کرے. آئے خداوند کا شکر، اس کی تعریف سے ستائش کرتے ہیں. یس مائی لارڈ. خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو. یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں مسیح تیرے بیٹے یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور القادر نام میں. آمین آمین. پریز دی لارڈ. Yes, Lord. Amen. ہاللویہ ہاللویہ. پریز دی لارڈ. Hallelujah. ہاللویہ. ہم ایک حوالہ پڑھیں گے. استشنا کی کتاب، اس کا 10 باب، اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے؟
खुदावन क्या कह रहा है कि पास है इसराइल, खुदावन तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावन अपने खुदा का खौफ माने, कि तू खुदावन अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावन अपने खुदा की बंदगी करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे भी खुदावन का कलाम हमें यही बताता है कि खुदावन का खौफ क्या है, बदी से अदावत है। हाँ, तो आए खुदावन जब आज हमारे इस पूरे ग्रुप से वो कह रहा है, जिस तरह वो बनी इसराइल से बोल रहा है खुदावन के ए इसराइल, आज खुदावन हमारे ग्रुप से कह रहा है कि ए टेरिबल आर्मी, खुदावन तेरा खुदा तुझसे हमसे क्या चाहता है, वो हमसे यही चाहता है कि हम अपने खुदा का डर और खौफ रखें, हम उसी की बंदगी करें, हम उसी का नाम को ऊंचा करें, हम उसी की सिताइश करें और हम उसी के प्यार और मोहब्बत में और उसी के और में आगे बढ़े और उसी का डर और खौफ मानते हुए अपने अपने अंदर रखते हुए हम उसी की बंदगी करें और उसी के आगे सिजदा करें, किसी और के आगे नहीं बल्कि अपने खुदा का ही खौफ मानते हुए हम उसकी बंदगी करेंगे और उसी को सिजदा करेंगे, किसी और पर तवक्कल या भरोसा नहीं करेंगे। हम अपने खुदा ही के नाम पर झुकेंगे, खुदा ही के नाम अपने खुदा के आगे ही आएंगे। तो खुदावन का शुक्र, उसकी तारीफ सिताइश करते हैं कि आज हमारा खुदा हमसे ये कहता है, इस ग्रुप से ये कहता है कि देख मैं खुदावन तेरा खुदा हूँ। हम अपने खुदा का डर और खौफ मानेंगे और ये हम सब इसीलिए यहाँ पर जमा है कि हम अपने खुदा का जो खौफ है हमारे अंदर है और ये उसने हमारे अंदर डाला है कि हम उसकी हजूरी में उसकी बंदगी करें, वरना हाँ हमारे अमाल हमारे काम ऐसे नहीं है कि हम उसकी हजूरी में ठहर भी सके, लेकिन ये उसका प्यार उसकी मोहब्बत है कि आज हम यहाँ पर जमा हैं उसके डर और खौफ की वजह से। हमारा खुदा ऐसा खुदा नहीं है कि जो बहुत खौफनाक खुदा है, बहुत कह लो कि करप्ट खुदा है या बहुत जालिम खुदा है, नहीं बल्कि रहम से भरा हुआ खुदा, वह कहर करने में धीमा है, शफकत और वफा में गनी है। हम अपने खुदा का अपना बादशाह, अपना बाप, अपना रब, अपना मुनज्जी, अपना दोस्त, खालिक और मालिक मानते हुए हम उसकी हुजूरी में हाजिर होते हैं और यही जानकर कि वो हमारी जानों का लंगर है, उसने आसमान और जमीन को बनाया है, इसलिए हम उसका डर और खौफ मानते हैं कि उसने हमें अपनी प्रतिष्ठा के लिए बनाया है। वो हमारे अंदर बदी को दूर करना चाहता है, वो हमारे अंदर जो आदम और हवा की वजह से गुनाह था हमारे अंदर, वो उसको दूर करना चाहता है। जब हम उसका डर और खौफ मानेंगे, जब आदम और हवा तो डर गए और जब उनकी जिंदगी में गुनाह आया तो वो खुदा की जिंदगी में रहते, लेकिन जब गुनाह आया तो वो खुदा से दूर हो गए और गुनाह ने खौफ उनके अंदर डाल दिया। लेकिन अजीजों, जब हम अपने खुदा के पास आते हैं तो हम पहले जैसे नहीं रहते हैं, हमारी जिंदगियां अक्सर बदल जाती हैं। तो खुदावन का शुक्र, उसकी तारीफ सिताइश करेंगे। आज हम चाहेंगे हम पूरे ग्रुप में हम खुदावन के खौफ को लेंगे और तमाम जिंदगियां इस बात के लिए दुआ करेंगे खुदावन तो हमारे पूरे ग्रुप में एकदम अपने डर अपने खौफ को हमारे अंदर बाप जारी कर दे। जहाँ कहीं भी हमारे एरिया में जहाँ कहीं भी हम सख्त दिल हैं वो नरमा जाए, ताकि हम खुदावन से मोहब्बत रखते हुए हज़र की बदी पर गालिब आ सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र अदा करेंगे। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, हम वर्शिप में हम सिस्टर वफा के साथ सिस्टर महेंद्र से कहते हैं कि वो अच्छा, सिस्टर अमनदीप से कहते हैं कि वो आए और आगे वर्शिप में हमें लीड करें। हाँ जी, हालेलुया। हेलो रेस्टोरेंट। हाँ जी जी सिस्टर जी, हाँ जी, सानू क्या जी? जी सिस्टर जी करो, तुसी करो। कौन महेंद्र? आंटी जी जे तुसी गाना तो गा लो, नहीं नहीं तो मैं तुसी गा लो तुसी गा। ठीक है जी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना वो मैनू बस कहंदा ए, मैं फिर क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है।
ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਮੀ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਰੇ ਹਰ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਅਜੀਜ਼ ਦੀ। ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਮੀ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਰੇ ਹਰ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਅਜੀਜ਼ ਦੀ। ਲੱਭਦਾ ਏ ਆਲੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਮੀ ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਨੂੰ, ਲੱਭਦਾ ਏ ਆਲੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਮੀ ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਨੂੰ, ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੰਜ ਮੇਰੀ ਪਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਡਰੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖ ਦੂਤ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹ ਕੱਲਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖ ਦੂਤ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹ ਕੱਲਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਲਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡੋਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡੋਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਲਾਲੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਲਾਲੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸੁਰ ਨਾਲ ਤਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡੋਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡੋਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਡਰੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿਸਟਰ ਅਮਨਦੀਪ। ਖੁਦਾਵੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਯਕੀਨਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਉਹਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੰਬਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਿਗਹਿਬਾਨੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਗੋਆਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਿਗਹਿਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਦੁਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਅਜ਼ ਜਲਦ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਖੁਦਾਵੰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦਾਵੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਜੇ ਖੁਦਾਵੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। हम इसी तरह हम आगे वर्शिप आगे बढ़ाएंगे और हम चाहेंगे कि पापा आगे आए और आगे वर्शिप में हमें लीड करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द ज़बूर लॉर्ड। 83। खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है, खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है, मेरी जान चांदी तेरी
बारगानों मेरी जान चांदी तेरी बारगानों मेरा मन मेरा तन भी कर दासना है मेरा मन मेरा तन भी कर दासना है खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है तेरन ते चिड़िया ने आल ना पाया तेरन ते चिड़िया ने आल ना पाया बनाइयो ना बोटा दे रहने दी जा है बनाइयो ना बोटा दे रहने दी जाए खुदावंद तू लश्करां दा खुदा है हाय सितराए मेरे बादशाह हाय सितरा ए मेरे बादशाह तेरा मज़बा मेरे लिए एक पनाह है तेरा मज़बा मेरे लिए एक पनाह है खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है मुबारक तेरे घर दे सब रहन वाले मुबारक तेरे घर दे सब रहन वाले सना तेरी ना दे मुँह विच सदा है सना तेरी ना दे मुँह विच सदा है खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है मुबारक है ओ जिसदा है जोर ते थो मुबारक है ओ जिसदा है जोर ते थो ओना दे दिला विच ते तेरा हीरा है ओना दे दिला विच ते तेरा हीरा है खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है ओ टुर देने रोने दे जंगल विचों दी ओ टुर देने रोने दे जंगल विचों दी ते लैंदे ओ थे ही चश्मा बना है ते लैंदे ओ थे ही चश्मा बना है खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है जदों हुंदी है पहले चले दी बारिश जदों हुंदी है पहले चले दी बारिश ओनू बरकतां नाल लैंदी छुपा है ओनू बरकतां नाल लैंदी छुपा है खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है ओ एक जोर थी जोर तक वधे जांदे ओ एक जोर थी जोर तक वधे जांदे ते घर पहुंच जांदे खुदावंद खुदा है ते घर पहुंच जांदे खुदावंद खुदा है खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है मेरी गलते कन धर तू याकूब दे रब मेरी गलते कन धर तू याकूब दे रब ते सुन ले तू आप ही मेरी जो दुआ है ते सुन ले तू आप ही मेरी जो दुआ है
खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। हम सनिया को दावत देते हैं कि सनिया आए और नेक्स्ट वर्शिप में हमें लीड करें। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਨਾ ਟੱਕੇ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਖੰਭਾ ਹੇਠ ਰੱਖੇ ਬਣ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਵੈਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣੇ ਜਾਣ ਵਾਰ ਦਾ मूसा ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਰਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ मूसा ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਰਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮੱਛੀ ਰੋਟੀ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮੱਛੀ ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਕਦੇ ਘੜੀ ਔਖੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਕਦੇ ਘੜੀ ਔਖੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਯਾਰੀ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਚ ਮੇਰਾ ਸਾਰਦਾ इब्राहिम दा यारी खुदा मेरियां जरूरतां च मेरा सारदा मूसा ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਰਾਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਦੇਂਦਾ ਮੋੜ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਦੇਂਦਾ ਮੋੜ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਚ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਚ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਯਿਸੂ ਕਰਦਾ ਏ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਚ ਹਸਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਯਿਸੂ ਕਰਦਾ ਏ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਚ ਹਸਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ मूसा ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਰਾਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਲੜਦਾ ਏ ਜੰਗ ਓ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੀ ਆਪੇ ਲੜਦਾ ਏ ਜੰਗ ਓ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੀ ਆਪੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ मूसा ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਰਾਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹਰ ਜਿੱਤ ਟਹਿਣੀ ਏ ਮਸੀਹਾ ਉਹਦੀ ਵੇਲ ਹਰ ਜਿੱਤ ਟਹਿਣੀ ਏ ਮਸੀਹਾ ਉਹਦੀ ਵੇਲ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਜਾਊਗਾ ਕੁੱਪੀ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਜਾਊਗਾ ਕੁੱਪੀ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਏ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਏ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ मूसा ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਰਾਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सनिया। एक और हवाला पढ़ेंगे
22 की किताब उसका 12वां बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, अब सब कुछ सुनाया गया। हासिल कलाम ये है कि खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान। इंसान का फर्ज कुली यही है, क्योंकि खुदा हर एक फेल को हर एक पोशीदा चीज के साथ खा भली और खा पूरी अदालत में लाएगा। जैसे कि हम सुन रहे हैं कि ये खुदावन हमसे क्या कह रहा है कि हमने हमारा जो पहला जो एक फर्ज है वो क्या है कि हम अपने खुदा से डरे, हम अपने खुदा का डर और खौफ माने। सो आए हम चाहेंगे कि खुदावन अपने खौफ को जो हमें उसकी तरफ लेकर आता है, जो हमें हर बदी से गुनाह से दूर रखता है, जो हमें हर तरह की बुराई पर गलबा बख्शता है, जो हमें अच्छे और बुरे में तमीज बताता है, हम उसी डर और खौफ को इस पूरे ग्रुप पर यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे। सो खुदावन का शुक्र, उसकी तारीफ सताइश करते हैं। इसी तरह हम अगले मरहले में बढ़ते हैं इस बात के लिए कि आज के कलाम के लिए कि आज का जो कलाम है वो हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल को लाए, हमारे दिल की जमीन को नरमाए, और हम सिस्टर शाहीन के लिए बरकत, सलामती, जोर, कुव्वत, अनाइंटिंग, ठीक अनाइंटिंग, खुदावन की फ्रेश अनाइंटिंग, खुदावन का जोर, उसका तसल्लुत और यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे, ताकि खुदावन की बंदी उसके पाकरू के जोर से जोरावर बनते हुए आज हमसे कलाम करें, और उसके जोर में जोरावर होते हुए आज हमसे कलाम करें, ताकि हम पहले जैसे ना रहें। हम तो उसका शुक्र अदा करेंगे। यस माय लॉर्ड। हम सिस्टर शाहीन को कहते हैं कि वो आए और आगे मीटिंग को लीड करें। Praise the प्रेज Lord. द लॉर्ड, प्रेज द Praise लॉर्ड। the Lord. God bless you, श्रेया। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद इसी तरह अपने नाम अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। खुदावंद का मसा आपके ऊपर ठहरा रहे। हम प्रस्तिश के लिए भी खुदावंद का शुक्र करते हैं और खुदावंद की हुजूरी के लिए, उसके हमारे दरमियान आने के लिए खुदावंद का हम शुक्र करते हैं और खुदावंद से मिन्नत करते हैं कि आज जो भी वो हमसे बोले उससे हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाएं, हम पहले जैसे ना रहें। हालेलुया। और हम पानी और रोटी के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद, तेरे बेटे की कुर्बानी के लिए, खुदावंद यीशु मसीह तेरे लहू बहाने के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं दिल की गहराइयों से खुदावंद, कि यीशु तूने हमारी सारी गलतियों, कोताहियों को, गुनाहों को, खुदावंद खताओं को यीशु अपने ऊपर ले लिया। हम इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। हमारी सारी बीमारियों को, हमारी सारी लानतों को, हमारे खिलाफ जो बोला गया, लिखा गया, पढ़ा गया, उन सबको खुदावंद यीशु मसीह तूने अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम आज़ाद हों, बहाल हों और खुदावंद नजात पाएं यीशु के नाम से। खुदावंद इसी लिए खुदावंद खुदा तूने हमें दुनिया से अलग कर लिया, दुनिया से खरीद लिया, अपने लहू की कीमत दे के खरीद लिया। यीशु हम तेरे इस काम के लिए, तेरे इस बड़े प्लान के लिए, खुदावंद तेरी इस बख्शिश के लिए जो तूने हमारे ऊपर की, फ्री में तूने खुदावंद हमें नजात दे दी। खुदावंद इसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। तूने अपना लहू बहाया ताकि हम ना मरे खुदावंद, हम जिंदा रहें, हम उस अब्दी जिंदगी में दाखिल हों। इसके लिए खुदावंद हम यीशु तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद इस रोटी और पानी के लिए जो कि तेरा बदन है, जो तेरा लहू है, खुदावंद इसको हम जब अपनी जिंदगियों में लें तो खुदावंद जो कि तेरी कामिल मर्जी है कि हम तेरी मानिंद बन जाए, हमारे अंदर कोई दाग धब्बा झुर्री ना रहे। जिस तरह सरदार काहिन बरे का लहू लगा के उस पाक तरीन मकाम में जा सकता था, खुदावंद आज उसी तेरे पाक पवित्र लहू को, तेरे शफा बख्श लहू को लगाते हुए रोज बरोज हम खुदावंद यीशु तेरी मानिंद बनते जाएं, ताकि जब तू आए यीशु हमारे ऊपर कोई भी दाग, कोई धब्बा, कोई झुर्री ना हो, कि हम उन रहे हुए में शामिल हो जाएं। खुदावंद ये तेरा लहू, तेरा जो बदन हम लेते हैं खुदावंद, इससे हम खुदावंद यीशु मसीह जब इसको लेते जाएं तो हमारे अंदर से, हमारे घरों से वो सारी नापाकी, बेतरतीबी, बेगाड़ जो है खुदावंद यीशु के नाम से जाता रहे, और खुदावंद हम तुझ में नया जोर, नई ताकत खुदावंद पाते जाएं, और खुदावंद उन सीधे रस्तों पे चलें जिनके लिए खुदावंद यीशु तूने हमें बुलाया है, जिस तख्त के लिए
तेरी खुदावंद कॉलिंग है कि तू हमें वहां पे लेके जाना चाहता है। खुदावंद हम उस रास्ते पे चले। खुदावंद तेरे फरिश्तों को मुकर्रर कर देती हूँ कि वो हमें अरेस्ट करके रखें, ताकि हम ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े। खुदावंद वो सीधे तेरे पास आए खुदावंद खुदा, ताकि वो उस इनाम को हासिल कर सकें, खुदावंद उस ताज को हासिल कर सकें जो खुदावंद यीशु तूने हमारे लिए बनाया, जो खुदावंद यीशु तूने हमारे लिए इंतजाम किया। खुदावंद उसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। जब इस रोटी को लें, इस पानी को लें, तो कहीं पे भी खुदावंद हमारी इब्लीस ने जकड़ा हुआ है, कहीं उसने हमें बंधनों में बांधा हुआ है, आज खुदावंद खुदा वो सारे बंधन खुल जाएं। उनका कोई असर हमारे ऊपर, हमारे घरों के ऊपर, हमारे फाइनेंस के ऊपर, हमारे जिस्म के किसी अज़ा के ऊपर उसका असर रहने ना पाए। यस्सु के नाम से हम आज़ाद हों, बहाल हों, खुशहाल हों। खुदावंद हमारे घरों से लड़ाई झगड़े खत्म हों, हमारे घरों में जो बेतरतीबी है, गंदगी है, नापाकी है, बदी की वो सारी कुफ्तें हैं जो हमें तेरे कलाम को पढ़ने नहीं देती, सुनने नहीं देती, उस पे अमल नहीं करने देती। यस्सु के नाम से आज तेरे रोब और तेरे दबदबे से, तेरे इख्तियार से, यस्सु के नाम से हमारे घरों से, हमारे बदन के एक एक अज़ा से, लहू के एक एक कतरे से यस्सु के नाम से वो खत्म हो जाए। और खुदावंद हम पूरे पूरे तेरे उस बादशाही में दाखिल हो सकें। यस्सु के नाम से इस दुआ को बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कुल से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आप ईमान से इस पानी को पिएं और इस रोटी को लें। जहाँ जो भी आपकी उस वक्त आपकी इस वक्त परेशानी चल रही है या बीमारी है, आप उसको यीशु के सामने रखें और कहें इब्लीस से कि अब तेरा कोई असर नहीं है। जैसे जैसे ये पानी हमारे अंदर जाएगा, वैसे वैसे वो सारी गंदगी, नापाकी, बीमारी वो खत्म होती जाएगी। ईमान से पिएं। हालेलुया, प्रेज गॉड। आज जो 7 कलीसियां हैं, है ना, 7 चर्चेज हैं, उनके बारे में हम सीख रहे हैं। तो आज हमारी जो कह लें कलीसिया है, चर्च है, फिलदिलफिया की जो चर्च है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना, जो छठा है चर्च। और हमारे साथ में अरूसा है और माया है रीडिंग में। तो जी अरूसा, आप तैयार हैं? जी बच्ची। अरूसा, हाँ जी, आप इस को 7 आयत से 13 आयत तक पढ़ें इस चैप्टर को, और आपके बाद माया पढ़ेंगे। बाजी बाप कौन सा बता दो। तीसरा बाब, मुकाशवा की किताब, तीसरा बाब, उसकी 7 आयत से हम 13 आयत तक पढ़ेंगे, जो इस कलीसिया के बारे में है। हेलो, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। और फिलदिलफिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के कि जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता कि तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन जमायत वालों को तेरे काबू में कर दूंगा जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, बल्कि झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पाँव में सजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है, क्योंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है
اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ میں جلد آنے والا ہوں۔ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ آمین۔ پاک کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہماری زندگیوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ خدا کا شکر۔ آمین۔ پریز گاڈ۔ جی مایا آپ پڑھیں گی؟ پریز دی لارڈ دی۔ 7 سے کتنا تک پڑھنا ہے دی؟ 13 تک۔ اوکے، پریز دی لارڈ۔ اور فلیدی، ایک سیکنڈ، اور فلیدیفیا کی کلیسیا کے دودت کو یہ لکھ کہ جو پوتر اور ستیہ ہے اور جو داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دور کھول رکھا ہے جسے کوئی بند نہیں کر سکتا، کہ تیری سامرتھ تھوڑی سی ہے اور تو نے میرے وچن کا پالن کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ دیکھ میں شیطان کے ان سبھا والوں کو تیرے ونش میں کر دوں گا جو یہودی بن بیٹھے ہیں پر یہ نہیں ورن جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے چرنوں میں دنڈوت کریں گے اور یہ جان لیں گے کہ میں نے تجھ سے پریم رکھا ہے۔ تو نے میرے دھیرج کے وچن کو تھاما ہے، اس لیے میں بھی تجھے پریکشا کے اس سمے بچا رکھوں گا جو پرتھوی پر رہنے والوں کے پرکھنے کے لیے سارے سنسار پر آنے والا ہے۔ میں شیغر ہی آنے والا ہوں۔ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے کہ کوئی تیرا مکٹ چھین نہ لے۔ جو جے پائے اس میں اپنے پرمیشور کے مندر میں ایک کھمبا بناؤں گا اور وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے پرمیشور کا نام اور اپنے پرمیشور کے نگر ارتھات نئے یروشلم کا نام جو میرے پرمیشور کے پاس سے سورگ پر سے اترنے والا ہے اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ جس کے کان ہو وہ سن لے کہ آتما کلیسیاؤں سے کیا کہتا ہے۔ آمین آمین آمین۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو مایا اور روسا، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور ہم یہ ساری جو چرچز کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور کل بھی میں نے تھوڑا سا ریپیٹ کیا تھا کیونکہ میں نے دیکھا کہ کسی کو نہیں سمجھ لگ رہی تھی، تو آج پھر سے میں ایک دفعہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو چرچ میں فرشتے کو خط لکھا جا رہا ہے، جو ستارے ہیں خدا یسوع مسیح کے ہاتھ میں، وہ اصل میں خدا کے خادم ہیں، جو ان چرچز کے آپ کہہ لیں خدا خادم ہیں، پاسٹر ہیں، ان کو خط جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ خدا یسوع مسیح ان سے بات چیت جو ہے وہ کر رہا ہے نا۔ تو کوئی وہاں پہ فرشتہ نہیں، مطلب ٹھیک ہے خدا کے فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے یا کلام کو سمجھنے کے لیے، لیکن خداوند اس وقت جو خدا کے خادم ہیں یعنی ان سے بات کر رہا ہے، کلیسیوں کے جو خادم ہیں، اور یعنی 7 جو ستارے ہیں وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کے ہاتھ میں ہے، خداوند نے ان کو سنبھالا ہوا ہے۔ خداوند جو ہے، یہ جتنی بھی کلیسیاں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا
کہ خداوند ان سے بات چیت کر رہا ہے کہ تو نے میرے ساتھ پہلے سے محبت چھوڑ دی ہے، یا تو گر گیا تھا، ہے نا، خدا کے خادموں سے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بات چیت کر رہا ہے نا، یا میں تیرے ساتھ یہ کرنے والا ہوں یا یہ کرنے والا ہوں، ہے نا۔ تو کسی فرشتے سے بات نہیں کر رہا، خداوند یسوع مسیح جو خدا کے خادم ہیں ان سے بات کر رہا ہے کہ تیرے چرچ کے اندر ابھی جیسے کل ہم نے ازبل کے بارے میں سیکھا، بال کی جو تعلیم ہے وہ چل رہی ہے، نکیلیوں کی جو تعلیم ہے وہ چل رہی ہے، تو خداوند جو تھا، جو اس کے چرچ کے خادم تھے، ان سے بات چیت کر رہا تھا کہ تجھ میں ٹھیک ہے، یہ اچھا کام ہے کہ تیرے اندر صبر ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، لیکن تیرے چرچ میں یا تیری کلیسیا میں یا تیرے اندر جو ہے یہ والی برائی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو اس لیے یہ میں کہہ رہی تھی کہ تھوڑا تھوڑا آپ کو ساتھ ساتھ روز ہی بتاؤں تاکہ آپ اس کو یاد رکھیں کہ جو ستارے ہیں وہ اصل میں خداوند کے خادم ہیں، اور جو یہ شمع ہے، جو یہ کیا چراغ دان ہے، یہ چرچز ہیں، یہ کلیسیا ہے نا، اور خداوند جو کیا ہے، خداوند یسوع مسیح ان میں سب میں جاتا ہے یا پھرتا ہے، خداوند جو ہے کام کر رہا ہے ان سب چرچز میں، اور دیکھ رہا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، پھر خداوند جو ہے اس خدا خادم سے بات چیت کرتا ہے کہ تیرے چرچ میں یہ تو ٹھیک ہے، یا تیرے اندر یہ تو ٹھیک چل رہا ہے، یا تو یہ والی خدمت تو ٹھیک کر رہا ہے، لیکن تیرے اندر یہ والی برائی ہے نا۔ تو یہ ہم نے تھوڑا تھوڑا جیسے کہہ لیں کہ کر کے سیکھا، لیکن اس چرچ میں یعنی یہ جو کلیسیا جس سے آج ہم تھوڑا سا سیکھیں گے، ہے نا، فلدیپیا کی جو کلیسیا ہے، اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح جو ہے جب اس کے جو خادم ہے یا اس کا جو پاسٹر ہے اس سے بات چیت کر رہا ہے، خدا کا جو خادم ہے، تو اس سے کس طرح دیکھے بات کر رہا ہے کہ اس کہ جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں، وہ یہ فرماتا ہے نا۔ یہ کہہ لیں کہ خداوند جو ہے اس کلیسیا کے اوپر یہ والا بھید یا یہ والا الہام جو ہے اس کلیسیا کو اس کے ساتھ یا اس کے اوپر یہ بھید جو ہے وہ کھول رہا ہے کیونکہ ان کے حالات جو تھے یا ان کی جو جیسی سچویشن چل رہی تھی، اس حساب سے خداوند جو ہے ہر چرچ سے، ہر کلیسیا سے بات چیت جو ہے کر رہا ہے نا۔ تو اس کلیسیا کے ساتھ خداوند یسوع مسیح اس طرح بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ قدوس اور برحق ہے، یعنی کون؟ خداوند یسوع مسیح، ہے نا۔ صرف وہی کلیسیا جو اس سچائی کو سمجھتی ہے جو یسوع مسیح میں ہے، وہ اس کی پاکیزگی کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ وہ ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہم ایسے پاک ہوں جیسا کہ وہ ہے، اور ایسے ایماندار ہوں جیسا کہ وہ ایماندار ہے۔ تو خداوند یہ والی ایک جو کہہ لیں بھید ہے یا یہ ایک مکاشفہ جو ہے وہ اس کلیسیا کے اوپر کھول رہا ہے کہ وہی قدوس ہے، وہی برحق ہے، اور داؤد کی کنجی کس کے پاس ہے؟ خداوند یسوع مسیح اپنے بارے میں بتا رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح یہ والا بھید جو ہے اس کلیسیا کے اوپر کھول رہا ہے نا، کہ اس کے کوئی بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ یہ کلیسیا کو یا ہم سب جو مسیحی ہیں، یہ بھید جو ہے یہ ہم پہ کھلا ہونا چاہیے۔ یہ سچائی جو ہے ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو جس کلیسیا کو یہ نہیں پتا، وہی جیسے کہہ لیں وہ گرتی ہے یا وہ اس پاکیزگی کے اس معیار تک پہنچ نہیں سکتی جو خداوند یسوع مسیح کے، جیسے ہم کہہ لیں کہ جو جنگ کرنے والے ہیں، روحانی جنگ کرنے والے ہیں، ان کو یہ تھوڑا سا جیسے ایک جو یہ بھید جو ہے ان کے اوپر کھلا ہوا ہے، یا وہ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو دروازے جو کہہ لیں کہ ہماری زندگی میں بند کر دیے ہیں، یعنی شیطان کی طرف سے، ان کو شیطان کھول نہیں سکتا۔
اس کے اندر جیسے کہ لے وہ قوت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، یہ خداوند یسوع مسیح بھید جو ہے اس کلیسیا کے اوپر کھول رہا ہے نا، یا اس نے اگر کوئی دروازے کھولے ہوئے ہیں رحمتوں کے، برکتوں کے، تو شیطان ان کو بند نہیں کر سکتا۔ یہ خداوند جو ہے اس کلیسیا کے اوپر ایک میں کہوں گی کہ بھید جو ہے وہ مکاشفہ جو ہے وہ کھول رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہی کیا ہے، اس کے پاس وہ کنجیاں ہیں، اس کے پاس وہ چابی ہے، اور وہ ہی جیسے کہہ لیں کہ ہمیں آزاد کر سکتا ہے، ہمیں ابلیس کے شکنجے سے، اس کے ہاتھ سے چھڑا سکتا ہے خداوند یسوع مسیح، ہے نا۔ اور یہ جو یہ کس کی ہم اس کو کہہ لیں کہ خداوند یسوع مسیح یہ بھی بھید ایک قسم کا کھول رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہی بادشاہ ہے، خداوند یسوع مسیح ہی جو کہہ لیں کہ کنجیاں اس کے پاس ہے، اختیار اس کے پاس ہے نا۔ کنجی کا مطلب ہے یا چابی کا مطلب ہے، کی کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس کل اختیار ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پہ جان دی اور مردوں میں سے جی اٹھا تو خداوند یسوع مسیح کے پاس کل اختیار آ گیا، سارا کہہ لیں اختیار جو تھا وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ گیا تھا۔ اس کے لیے ایک حوالہ ہم پڑھتے ہیں متی 28 باب اور اس کی 18 آیت کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس کیا ہے، کل اختیار ہے۔ جی جی باجی میں نکال رہی ہوں۔ انجنا آپ اس میں پڑھنا اردو میں، سوری پنجابی میں، متی 28 باب اس کی 18 آیت۔ متی 28 باب اس کی 18 آیت، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس کیا ہے، وہ اپنے منہ سے کہتا ہے۔ ہاں جی۔ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ہاں جی، کس کا اختیار؟ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ہاں ਇਖਤਿਆਰ جی، ਮੈਨੂੰ سارا اختیار یعنی زمین کا، آسمان کا کل اختیار خداوند یسوع مسیح کو دے دیا گیا۔ جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے اور ابلیس کو شکست دی تو خداوند یسوع مسیح کے پاس وہ سارا اختیار جو تھا وہ آ گیا تھا۔ جی اور اس آپ پڑھیں گے کہ بچے تنگ کر رہے ہیں؟ جی باجی۔ اوکے۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آمین۔ آمین آمین۔ ہاں جی، تو یہ خداوند یسوع مسیح نے کل اختیار جو ہے یعنی خداوند یسوع مسیح کو جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، ابلیس کو شکست دی، تو تب خداوند یسوع مسیح کے پاس آسمان کا اور زمین کا کل اختیار جو تھا وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ گیا تھا۔ تو یہ ایک بھید جو ہے یعنی جو ایک میں کہوں گی کہ ایک موت کا جو ڈر ہے، ایک ورس میں لکھا ہوا ہے کہ موت تیرا ڈنگ کہاں گیا، ہے نا۔ تو خداوند یسوع مسیح کے پاس وہ ساری کنجیاں، وہ عالم روا کی کہہ لیں یا وہ ساری چابیاں جو تھیں، جو کہہ لیں کہ زبردستی ابلیس نے اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا، وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ گئی۔ بادشاہی کی جو کنجیاں ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ گئیں، اور خداوند یسوع مسیح یہ اس کلیسیا سے یا میرے سے اور آپ سے آج یہ بات جو ہے وہ یا بھید جو ہے وہ کھول رہا ہے نا۔ تو داؤد کی کنجیاں جہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے، تو داؤد کیا تھا، میرا خیال ہے ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ داؤد جو تھا وہ اصل میں کیا تھا، بادشاہ تھا، بادشاہی۔ تو خداوند یسوع مسیح کیا ہے، وہ تو
हम देखें अगर कि जो दाऊद था इसराइल का अजीम तरीन जो बादशाह था, है ना, और खुदा ने उसे अपनी कुदरत और इख्तियार दिया था दाऊद को, है ना। लेकिन खुदाम यीशु मसीह जो हमारा असल बादशाह है, जो कि बादशाहों का बादशाह है, अजीम बादशाह है, असल बादशाह है ना, यानी उसकी कोई मिसाल जो है वो नहीं मिलती। अब जो जो सारा इख्तियार है वो खुदाम यीशु मसीह के पास है ना। ये दाऊद की कुंजियों का मतलब है कि यानी दाऊद के पास यानी बादशाही थी, अब बादशाही जो किसके पास है, खुदाम यीशु मसीह के पास है। तो अब जो हमारा बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह जो है, असल जो बादशाह है, उसके पास जो सारी चाबियां हैं वो उसके पास है ना। तो ये एक भेद जो है वो हमें पता होना चाहिए कि अब कुल इख्तियार जो है जमीन और आसमान का खुदाम यीशु मसीह के पास है। और ये चाबियां जैसे कोई, जैसे जो भी कुछ कह लें आसमान पे है, पीछे भी हमने थोड़ा सीखा था कि वो कोई नजर आने वाली चाबियां नहीं है कि हमें कोई जैसे कह लें कोई इस तरह चाबी नजर आएगी, है ना, कि दाऊद की कुंजी या खुदाम यीशु मसीह के पास अब सारी चाबियां हैं। तो वो कोई इस तरह की चाबी नहीं है, वो इख्तियार की बात हो रही है, वो कुदरत की बात हो रही है। जैसे हमें क्या खुदाम यीशु मसीह ने जब वो हम उसमें मरकस की महल अंजील में कि खुदावंद ने हमें इख्तियार दिया कि क्या करें, सांपों और बिच्छुओं को कुचलें और उसकी सारी कुदरत पर गलबा पाएं। तो ये है असल में इख्तियार, या असल में कह लें कि कुंजियां या कुदरत जो है वो क्या है, अब हमें दी है। जो खुदावंद यीशु मसीह के पास है वही इख्तियार, वही कुदरत जो है खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको दी है ना। तो ये कोई देखने वाली या नजर आने वाली चाबी नहीं है, ये इख्तियार को शो करती है या पेश करती है ना। और ये खुदावंद की कुदरत को, ताकत को पेश करती है कि खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में जलाए गए तो खुदावंद यीशु मसीह के पास ही इख्तियार है, और वही इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको दे दिया है ना। तो ये उस चीज की या बात हो रही है, या खुदावंद यीशु मसीह ने हमें भी कह लें कि अपनी बादशाही में दाखिल कर लिया, या उसने वो वाला दरवाजा जो था बादशाही के लिए या उस नए यरूशलेम में जाने के लिए, वो दरवाजे जो थे वो खुल गए थे, है ना। तो इसलिए ये उस चीज की बात हो रही है, ये सारी रूहानी तौर पे, स्पिरिचुअली तौर पे सब कुछ हो रहा है। ये फिजिकली जैसे कह लें इस तरह कोई चाबी नहीं नजर आएगी। हमें जो इख्तियार दिया गया, हम जो यीशु का नाम लेते हैं उससे दरवाजे खुल जाते हैं, उससे यानी ये एक चाबी है, या ये एक कुदरत है, ये एक ताकत है ना। तो यहाँ पे कोई जिस्मानी बातचीत ने वो नहीं हो रही, है ना। तो इस चर्च के साथ, इस कलीसिया के साथ, या आज मेरे और आपके साथ खुदावंद ये वाली बातचीत जो कर रहा है कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने दरवाजे खोल दिए हैं उनको कोई बंद नहीं कर सकता, जब तक के कह लें हम खुद उस दरवाजे को ना खोल दें कि इब्लीस को अपनी जिंदगियों में आने दे, है ना। ये यानी शैतान के अंदर वो ताकत वो नहीं है जब तक हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, जब तक हम जैसे कोई बदी जो है ना करेंगे, तब तक वो हमें कह लें कि पीछे नहीं खोल सकता। या जिस बादशाही में खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दाखिल कर लिया है उसमें से हमें वो निकाल नहीं सकता। ये हम ही कहीं ना कहीं कोई गलती, कोई गुनाह करते हैं जिसकी वजह से हम कह लें कि पीछे हट जाते हैं या गिर जाते हैं, है ना। या वो दरवाजे जो हैं वो खोल देते हैं इब्लीस के लिए, है ना। खुदावंद ने तो वो बंद कर दिया, खुदावंद ने वो इख्तियार जो है वो जोर, वो ताकत, जो कुदरत जो है वो दे दी कि हमारे लिए बादशाही के दरवाजे खुल गए। लेकिन हम खुद कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम जो है वो कर देते हैं जिसकी वजह से हम पीछे पड़ जाते हैं या उस बादशाही से हट जाते हैं, है ना। तो इसलिए खुदावंद ने ये इख्तियार मुझे और आपको दिया हुआ है। खुदावंद ने ये दरवाजा जो है हमारे लिए खोल दिया कि हम उसकी बादशाही में दाखिल हों, या उस नए नए यरूशलेम की तरफ जो है। जैसा कि हमें पता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, वो पर्दा जो था दरमियान में उसको, वो जो दीवार थी वो गिरा दी थी
کہ ہم اس اب نئے یروشلم میں داخل ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ لیکن ہم ہی کہیں نہ کہیں جیسے کل ہم نے دیکھا کہ وہ 7 روحوں کو الاؤ نہیں کرتے، اجازت نہیں دیتے کہ ہم ہماری زندگیوں کو اس طرح سے پاک بنائیں جس طرح کے خدا یسوع مسیح پاک ہے، جس طرح کے وہ ہمیں بنانا چاہتا ہے۔ تو اگر ہم اس میں بنے رہیں، اس پاکیزگی میں، اس میں محفوظ رہیں جو خدا یسوع مسیح ہمیں بنانا چاہتا ہے، وہ 7 روحیں جو ہمیں بنانے کے لیے خدا نے دی ہیں، تو ہم اس بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں، اس نئے یروشلم میں داخل ہو سکتے ہیں اگر ہم ان کو اجازت دیں گے، ہے نا؟ تو اگر نہیں دیں گے، اجازت نہیں دیں گے، تو ہم اس طرح سے پاک نہیں بن سکتے، ہم پاکیزگی کی، کاملیت کی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے، ہے نا؟ تو یہ داؤد کی کنجیوں کا مطلب یہ ہے کہ خداوند جو ہے، خداوند نے اب ہمارا جو بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے پاس سارا اختیار ہے نا؟ تو اس چرچ کو خداوند نے ایک نصیحت جو تھی وہ کی کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، دیکھ میں نے تیرے لیے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی سے بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا اور میرے نام کا انکار نہیں کیا، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ خداوند یہ بار بار میں کہوں گی کہ ہر کلیسیا سے، ہر چرچ سے یہ بات بار بار کر رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، کہ خداوند ہمارے سارے کاموں کو جانتا ہے۔ خداوند جو ہے وہ ہمیں بار بار میں کہوں گی کہ یاد دلاتا ہے کہ وہ ہمارے کسی بھی ایسے کام سے ناواقف و بے پرواہ نہیں ہے جو اس کے نام میں اور اس کے نام کے لیے کیا گیا ہو، چونکہ اس کلیسیا نے اپنی تھوڑی سی قوت جو اس میں تھی استعمال کیا اور اس کے کلام پر عمل کیا اور اس کے نام کا انکار نہ کیا، اور خداوند جس کے پاس داؤد کی کنجی ہے اس کے سامنے دروازہ کھولا۔ ہماری قوت تھوڑی ہے، لیکن اگر ہم اس کے کلام پر عمل کرتے رہیں اور اس میں بڑھتے رہیں اور اس کا انکار نہ کریں، تو ہم ہر روز جو ہے خداوند سے جو قوت ہے اور زور ہے وہ پا سکتے ہیں، اور وہ قوت اور وہ طاقت جو ہے، وہ زور جو سہون سے ہمیں ملتا ہے، وہ ہمیں کامل بنا سکتا ہے۔ ہم اپنی جو قوت ہے، طاقت ہے، اس سے نہیں بن سکتے، ہے نا؟ یہ ہمیں ایک جو زبور ہے 84 زبور ہے، اس میں اس کی 5 آیت اور 5 آیت سے 7 آیت تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہیں اپنی قوت اور اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے۔ جی انجنا اور عروسہ نکالنا زبور 84 ہے۔ سوری جو وہ ادھر انجنا ورسز نکلی وہ تھوڑی سی غلط تھی، ہاں سوری۔ 84 سے 5 84 زبور اس کی جی 5 آیت سے 7 آیت تک پڑھنا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، اس کے دل میں سہون کی شاہراہیں ہیں، وہ وادی بقا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بناتے ہیں، جہاں کہ پہلی بارش اسے برکتوں سے معمور کرتی ہے، وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں۔ آمین۔ ہاں جی 5 جی سے 7 بچے۔ ہاں جی جی انجنا پڑھیں۔ ਧੰਨ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਲ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਕਾ ਦਾ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੀਂਹ ਉਸਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਲ ਤੇ ਬਲ ਪਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸਿਓਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। آمین۔ ہاں جی، تو طاقت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ خداوند سے ملتی ہے، سہون سے آتی ہے، اور یہی طاقت جو ہم پاتے ہیں یہی ہمیں اس سہون کے کہہ لیں سڑکوں کی طرف یا اس کی شاہراہوں کی طرف لے کے جا رہی ہے، جو طاقت ہمیں خداوند سے مل رہی ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں سہون کی شاہراہیں ہیں، جس کے دل میں یہ کہہ لیں کہ
ایک ڈیزائر ہے، یہ خواہش ہے جس کے دل میں کہہ لیں کہ ایک محبت بھری ہوئی ہے کہ میں نے اس جو خداوند نے وعدہ کیا ہے، صہیون کا وعدہ کیا ہے خداوند یسوع مسیح نے۔ صہیون اصل میں کیا ہے؟ جہاں خداوند کا تخت لگا ہوا ہے۔ صہیون کیا ہے؟ جہاں خداوند کا تخت لگا ہوا، اور ہماری جو بلاہٹ ہے، ہماری کالنگ جو ہے، خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو، ہے نا؟ خداوند نے ہمیں اس کے لیے بلایا ہے، یا اس تخت کے لیے بلایا۔ اب یہ ہماری کہہ لیں کہ کوشش ہے، یا ایک خداوند کے ساتھ رشتہ ہے کہ ہم اس تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے، ہے نا؟ تو یہ ہمیں لے کے کون جائے گی؟ خداوند کی قوت، خداوند کی طاقت جو ہمیں روز روز ملتی ہے۔ ایک ہی دفعہ جیسے کہہ لیں کوئی سال کے بعد ہم نے بائبل پڑھ لی، یا اس کا کوئی حکم مان لیا، یا چرچ چلے گئے، اس سے نہیں۔ دیکھیں یہ کیا ہے؟ ہمیں روز روز جو طاقت ملتی ہے، روز روز جو ہم اس میں زور پکڑتے جاتے ہیں، ہے نا؟ طاقت پر طاقت پاتے جاتے ہیں، وہ ہمیں یعنی کہہ لیں کہ اس صہیون کی طرف لے کے جاتی ہے، اور جس کے اندر میں کہوں گی کہ وہ آگ جو ہے لگی ہوئی ہے کہ میں نے جس کام کے لیے یا جس تخت کے لیے خداوند نے مجھے بلایا، میں نے اس تک جانا ہے۔ مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، میں جان مجھے دینی پڑے، مجھے اس کے لیے کچھ چھوڑنا پڑے، مجھے رشتہ داریاں یا دنیا کی جو دولت ہے، یا دنیا کی جو یہ کام ہیں وہ چھوڑنے پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، میں تیار ہوں، ہے نا؟ یہ اگر کسی انسان کے اندر، خدا کے ہم مسیحیوں جو ہیں ان کے اندر یہ لگی ہوئی ہے، تو وہ اس تک پہنچیں گے، وہ صہیون تک پہنچیں گے۔ اگر ہم دنیا کے کاموں یا اپنے فیملی کے لیے، یا اپنے، جیسے آپ کو پتہ ہے خداوند یسوع مسیح نے جب بلایا تو شاگردوں نے کیا کیا تھا؟ سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے، اپنے جیسے کہہ لیں فیملیز، اپنی جیسے پطرس کو جب خداوند نے کہہ لیں بلایا، اور جب وہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا، یعنی ہم کہیں گے کہ اس دن جس دن اس وقت جس کے اس کی میں کہوں گی کہ جو کاروبار ہے، یعنی مچھلیاں وہ پکڑتے تھے، اس کو بیچتے تھے، ہے نا؟ یعنی وہ یہ جو کرتے تھے، اس دن اس نے سب سے زیادہ مچھلیاں پکڑی تھی، یعنی اس کو کہہ لیں کہ وہ پیسہ جو تھا یا دولت جو تھی بڑی افراد سے مل سکتی تھی، لیکن خداوند نے اس کو بلا لیا، اور اس نے کیا کیا؟ وہ وہیں پہ چھوڑ کے آ گیا، اپنی دولت، اپنا گھر بار، سب کچھ چھوڑ کے اس کے پیچھے آ گیا۔ تو آج ہم بھی اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے کچھ بھی ہمیں چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی فیملی کو، یا اپنے ایسے دولت ہے یا عزت ہے، یا ایسے کچھ کام ہوتے ہیں جو خداوند کے کلام سے ہمیں جیسے پتہ چلتا ہے کہ جی غصہ نہیں کرنا، ہے نا؟ تو اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ہمیں صہیون میں جانے نہیں دیں گے، یہ یہ جو سڑکیں ہیں اس پہ چلنے نہیں دیں گے، اس سیدھے رستے کی طرف جانے نہیں دیں گے، یہ ہمیں اس مقام تک نہیں لے کے جائیں گے، یہ کیونکہ ہمیں پیچھے لے کے جائیں گے۔ یہ ابلیس کا ایک ہتھیار ہے، یہ اس کا ایک دروازہ ہے جو اس نے ہماری زندگی میں کھول دیا، یا پھر ہمارے اندر کوئی ایسی چوری کی عادت ہے، بدگوئیوں کی عادت ہے نا؟ اور جھوٹ بولنے کی عادت ہے، کوئی بھی ایسی بات ہے، شراب ہے، یا کوئی بھی ایسا نشہ ہے، دنیا کا جو کام ہے، دنیا کے جو چیزیں ہیں، یا دولت سے ہمیں بڑا پیار ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو کوئی بات نہیں، اب میں نے گزارا بھی تو کرنا ہے نا، اس دنیا میں بھی تو رہنا ہے، کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے اگر جھوٹ نہیں بولیں گے، کاروبار کے لیے ہوتا ہے ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے نا۔ لیکن اگر ہم خداوند پہ، اس سچائی پہ ایمان رکھیں گے تو خداوند جو ہے وہ ہمارے لیے جیسے وہ اس میں ہے متی کی انجیل میں کہ کھانے پینے کی، پہننے کی فکر نہ کر، وہ تو ہمیں وہ دے گا ہی، اس نے اپنے بچوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو اس کے ساتھ چلیں گے وہ ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا، ہے نا؟ تو فکر ہم کس کی کریں کہ ہم صہیون سے، ہم اس انعام سے جو ہمیں نیا نام ملنے والا ہے، جو ہمارے اوپر مہر ہونے والی ہے، اس صہیون کی طرف جانے کے لیے، اس نئے یروشلم کی طرف جانے کے لیے
है ना, कहीं हम उससे पीछे ना रह जाएं। तो हमें फिक्र उस बात की होनी चाहिए, इस बात की नहीं कि कोई बात नहीं, हम अ, अपनी ये जो दुनिया पे जितनी देर हमारी जिंदगी है उसको तो अच्छा गुजार लें, फिर हम उसी को अच्छा गुजार सकेंगे। जो हमारी अबदी जिंदगी है फिर हम उसको नहीं संवार रहे, है ना। तो ये एक दरवाजे जो हैं हम खुद खोल देते हैं, और जो दरवाजा खुदावंद ने हमारे लिए खोला है हम उसकी तरफ जाने की फिर तैयारी नहीं करते। तो इसलिए खुदावंद जो कह रहा है वो ताकत तुम्हें कहाँ से मिलेगी, वो मेरे से मिलेगी, खुदावंद से मिलेगी। और वो सहून से खुदावंद जो मसा है, वो जो हमें कहेंगे कि रोज ही हमारे ऊपर क्या करता है, उंडेलता है। हम रोज ही जब पहले चर्च जाते हैं, दुआ में जो हमारी पर्सनल दुआ है, जो फैमिली प्रेयर है, जो हम इस मीटिंग में आते हैं, तो खुदावंद क्या है, खुदावंद का एक खास मसा जो है, वो जोर जो है वो हमारे ऊपर उंडेल रहा है, वो ताकत जो है वो उंडेल रहा है कि हम क्या करेंगे, इब्लीस को शिकस्त देंगे, और उस जो दरवाजे वो खोलना चाहता है हमारी जिंदगी में, उसको हम यीशु के जोर से बंद कर सकते हैं, है ना। जैसे ये हमने पहली आयत में पढ़ा कि उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। तो वो दरवाजे जो खुदावंद ने उसकी कुदरत से, उसकी ताकत से उसने बंद कर दिए हैं हमारी जिंदगी में, कि हम क्या है, इब्लीस हमें छू नहीं सकता, लेकिन हम खुद फिर किसी ना किसी तरीके से उन दरवाजों को खोल देते हैं, है ना। तो खुदावंद जो है वो कह रहा है, मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है। तो कुव्वत हमें कहाँ से मिलती है, खुदावंद से मिलती है। हमारे अंदर कोई ताकत, कोई वो कुव्वत जो है, पावर जो है वो नहीं है ना। फिर खुदावंद कह रहा है कि मेरे नाम का इनकार ना करना, कुछ भी हो जाए मेरे नाम का इनकार ना करना, यानी खुदावंद यीशु मसीह का। तो इसके लिए एक हवाला हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील 15 बाब और उसकी 5 आयत। जी, यूहन्ना की इंजील हाँ जी। उसका 15 अंगूर बाब दी हाँ जी, ਪੜੋ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੋ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਥੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਮੀਨ, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हाँ जी, तो जी रोसा आप पढ़ेंगे। जी। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। आमीन। आमीन आमीन। हाँ जी, तो जो यीशु का इनकार कर देता है, जो खुदाम यीशु मसीह के जैसे कह लें कि उसके कामों को नहीं करता, वो क्या है, वो डाली काट दी जाएगी और उसको क्या किया जाएगा, आग में डाल दिया जाएगा। यानी एक तमसील की सूरत में, या उसमें खुदावंद जो है हमें समझा रहा है कि आग की झील में उसको डाल दिया जाएगा। जब हम यीशु के साथ कायम नहीं रहते, उसके साथ जुड़े नहीं रहते, उसके साथ व्यस्त नहीं रहते, तो हम फल भी नहीं ला सकते। और अगर उसका इनकार कर दिया, उससे दूर चले गए, तो यानी हमें खुदावंद ने क्या किया है कि नेक कामों के लिए, जैसे कल हमने वो वर्ष पढ़ी थी कि उसने हमें नेक कामों के लिए मखलूक किया है, बनाया है, पैदा किया है, कि हम उसकी कामिल मर्जी को पूरा करें। वो नेक काम जो उसने हमारे लिए, हमारे पैदा होने से पहले ही लिखे हुए हैं, उन कामों के लिए उसने हमें जमीन पे भेजा है। तो अगर हम वो काम नहीं करते, हम शैतान के काम करते हैं, यानी सच्चाई में कायम नहीं रहते, खुदाम यीशु मसीह जो कि सच्चाई है उसके साथ जुड़े नहीं रहते, तो हम क्या हैं, फल तो दूर की बात है, फिर हम कुछ भी नहीं, वो सूख जाएगी। और जब सूख जाती है डाली कोई, तो उसको क्या किया जाता है, फिर आग उससे जलाई जाती है ना। तो इसलिए अगर हम खुदाम यीशु मसीह के साथ चलते रहेंगे, उसके काम करेंगे, है ना, उस जैसे काम करेंगे, पाकीज़गी के, या उसके हुक्मों पे अमल करेंगे,
तो इसका मतलब है फिर हम खुदावंद के साथ उस अंगूर की हकीकी जो डाली खुदावंद यीशु मसीह है उसके साथ जुड़े हुए हैं। फिर हमारी जिंदगियों में फल आएगा। और फल हमने ये पीछे हमने सीखा ही था कि फल क्या है हमारे अंदर। जो रूहानी फल जो है आते हैं ना, यानी सब्र, तहम्मुल और मेहरबानी, ये सारी चीजें जो हैं और सारे जो फल हैं हमारी जिंदगी में आते हैं। तो ये अगर नहीं आ रहे, हम तो रोज कह लें बुराई ही करते जाते हैं, बदी के काम ही करते रहते हैं। तो इस तरह क्या हम कर रहे हैं, असल में यीशु का इनकार कर रहे हैं। इनकार सिर्फ वही लोग नहीं कर रहे जो कह लें खुदा यीशु मसीह को छोड़ के दूसरी किसी कौम में चले गए हैं। असल में वही नहीं, हम कल इस पे थोड़ी और बात करेंगे वर्ष पे। सिर्फ वही इनकार नहीं कर रहे जो हम बुरे काम करते हैं, जो मसीह में रह के, और काम किसके कर रहे हैं, शैतान के कर रहे हैं। वो भी असल में क्या कर रहे हैं, यीशु का इनकार कर रहे हैं। यीशु के काम नहीं कर रहे, हम तो शैतान के काम कर रहे हैं। तो फिर हमें अजर भी या हमारी जिंदगियों में से फल भी उसी के नजर आएंगे। फिर खुदा यीशु मसीह के फल जो हैं वो हमारी जिंदगी में नजर नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है कि हम खुदा का इनकार कर रहे हैं। जैसे जैसे हम हमारे अंदर कोई मतलब झूठ है, फरेब है, धोखा है, जैसे हरामकारियां हैं, ज़नाकारियां हैं, तो ये क्या है, हम यीशु का इनकार करते जा रहे हैं। हम बुत परस्ती में हैं, तो असल में क्या कर रहे हैं, हम यीशु को खुदा नहीं मान रहे, हम तो उन दूसरे जो महबूद हैं उनको खुदा मान रहे हैं। तो असल में ये हम यीशु का इनकार करते जा रहे हैं। तो फिर हम क्या हैं, यीशु के और हमारे दरमियान दुश्मनी है, या हम क्या हैं, फिर उसके साथ व्यस्त नहीं, हम उसकी साथ जुड़े नहीं, वो डालियां नहीं हैं हम, है ना। तो इसीलिए फिर हमारी जिंदगियों में से फल भी नहीं नजर आता हमारी जिंदगियों में से। इसीलिए वो जो क्या जो आयत है जिसमें कहा है कि जो खादम है वो अपने फलों से पहचाने जाएंगे। तो हमारे अंदर क्या वो फल नजर आ रहे हैं जो कि खुदा यीशु मसीह के फल हैं, है ना। वो सब्र है हमारे अंदर। हमें तो एकदम से सबको ही मैं कहूंगी, एकदम से किसी ने कुछ हमारे बारे में कह दिया, गुस्सा आ जाता है, नफरत आ जाती है ना, जेलसी आ जाती है कि हम इससे बदला लें, किस तरह मैं अब इसको शर्मिंदा करूं, इसको जलील करूं किसी के सामने, है ना, क्योंकि इसने मेरी बेइज्जती की है, मेरे साथ ऐसे बोला है। तो ये किसके फ्रूट है, ये तो शैतान के फ्रूट है ना, फल हैं। तो इसका मतलब है फिर खुदावंद का, खुदावंद यीशु मसीह का हमने इनकार कर दिया, और जो हमारी जिंदगी में से फल नजर आ रहे हैं वो शैतान के हैं। तो हमने खुदावंद यीशु मसीह का फिर इनकार किया। इसीलिए जब वो दिन आएगा, जैसे हमने कल में थोड़ा देखा था कि उनके ऊपर फिर वो दिन चोर की तरह आ जाएगा। उनको वो क्योंकि तैयार नहीं है, उनकी जिंदगियों से फल तो उनके उसके नजर आ रहे हैं, शैतान के नजर आ रहे हैं, है ना। तो हम अगर ऐसे कर रहे हैं तो आप अपनी अपनी जिंदगी में झांकें, देखें, परखें, अपने आप को जांचें कि मेरी जिंदगी में खुदा यीशु मसीह के फल हैं या शैतान के हैं। तो आप, मैं कहूँगी, अकाउंट करें कि नहीं, सारे अपने अपने मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, है ना, मैं कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रही। तो आप आज अपना अपना जायजा लें कि कहाँ मेरी जिंदगी में से यीशु मसीह के फल ज्यादा हैं या शैतान के हैं। तो इसका मतलब फिर हम उसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं। हमारे भी इस जिस तरह ये कहा है कि वो फिर क्या डाली की होगी, आग में डाली जाएगी। तो इसलिए हम अपने अपने जिंदगी का जायजा लें, जहाँ कहीं हम खुदावंद से दूर हैं तो हम उस में जोर नहीं पकड़ रहे, हम फिर उस मुबारक आदमी की तरह नहीं है जिसकी कुव्वत क्या है, सहून से आ रही है, जिसकी ताकत जो है वो खुदावंद है, जिसकी ताकत जो है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो दाऊद की कुंजियां रखता है, जिसने क्या किया है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, जो कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जो बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह है, जो असल बादशाह है ना। तो फिर हम उसके
अंदर कायम नहीं है, जो कि हमें जिसने इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। इसीलिए फिर हम जब इन जो भी ये सांप और बिच्छू हमने थोड़ा सीखा था कि ये क्या है, हमारे अंदर जो जहर भरा हुआ उसमें मेरा अमसाल में लिखा हुआ ना कि हमारी जुबान जो है उस जहर कातल से भरी हुई है ना, जहर से भरी हुई है। हमारे मुंह से गंदी बातें, दूसरों को दुख देने वाली बातें जो हैं, कड़वाहट जो है भरी हुई है, तो वो किस में है? जहर किस में भरा हुआ है? सांप में भरा हुआ है। तो और बिच्छू जो है जो डंग मारता है, हम भी क्या करते हैं, हमारी नेचर है कि हम किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हम डंग मारते हैं, हम उसको पीछे करना चाहते हैं और खुद जैसे कह लें ऊपर होना चाहते हैं, या क्या कहते हैं, किसी को नीचा दिखा के फिर हम चाहते हैं कि हमें वो शोहरत, वो इज्जत, वो जो है वो मिले। तो क्या है, हम डंग मारने वाले हैं, हम जहर से भरे हुए हैं। तो इसलिए खुदावंद ने हमें इख्तियार दिया है कि इन सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इसकी सारी कुदरत पर गलबा पाओ। तो हम रोज 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 जो ताकत खुदावंद से पा रहे हैं, ताकि हमारे अंदर से ये जहरीलापन जो है, जो हम दूसरों को डंग मारते हैं, है ना, या दूसरों को डसते हैं, दूसरों को अपनी जुबान से, अपने मुंह की बातों से बरकत देने के बजाय कड़वी बातें हमारे मुंह से निकलती हैं, दूसरों को दुख देते हैं, दर्द देते हैं और लानत करते हैं, वो हमारे मुंह से निकलता है। तो अगर हम ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ये सारी किसकी क्या लेंगे नेचर है, या किसके ये फल हैं? इब्लीस के, शैतान के हैं। तो हमें जोर दिया है खुदावंद ने, ताकि रोज 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 अपने अंदर से ये गंदी बातें, ये जो हमारे अंदर कड़वाहट है भरी हुई है, और हम सब में है, मैं ये नहीं कह रही किसी के, है ना, तो इस पे कुदरत, इस पे ताकत जो है वो खुदावंद हमें देता है, और वो रोज हमें दे रहा है ताकत, ताकि क्या करें, हम गलबा पाएं और ताकि उस तख्त तक पहुंचे, है ना। तो खुदावंद मुझे और आपको फजल दे कि हम यीशु का इनकार ना करें, और ये जो शैतान की जो नेचर है हमारे अंदर, जो हम दूसरों को दुख देते हैं, दर्द देते हैं, इन दरवाजों को बंद करें, इन पे गलबा पाएं। यानी जो शैतान के तरफ से दरवाजे खुले हैं, और जो खुदावंद ने हमारे लिए दरवाजा खोला है, जो हमें उस तख्त की तरफ लेके जाता है, जो नए यरूशलेम की तरफ लेके जाता है, जो सहून की तरफ लेके जाता है, हम उसमें दाखिल हों, उन राहों पे चलें, और सीधे जैसे यशवा का उसने कहा कि अगर क्या वो वर्ष है कि मेरी शरीयत से तू ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, है ना। तो वो हमें सीधे रास्तों की तरफ लेके जाएगी। यानी खुदा उनके हुक्म जो हैं, खुदा उनके मुंह की बातें, अगर हम उनके ऊपर अमल करेंगे, इनकार नहीं करेंगे, तो हमें ये सहून तक लेके जाएंगे, तो ये हमें नए यरूशलेम तक लेके जाएंगे। तो खुदावंद मुझे और आपको बरकत दे। हम कल बाकी की जो है इसके बात करेंगे, है ना, क्योंकि वो वर्ष थोड़ी लंबी है, तो हमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो खुदावंद आप सबको और मुझे भी बरकत दे और फजल दे कि हम इस इख्तियार को जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया है, ये कुदरत, ये ताकत जो है, उसको इस्तेमाल करें और अपने अंदर से गंदगी को, नापाकी को निकालें, है ना, जो कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह को पसंद नहीं है। और हम लास्ट प्रेयर में चाहती हूँ कि जिस किसी भी की कोई रिक्वेस्ट है वो जरूर दे। ये हम कुछ अरसा से नहीं कर रहे, इसीलिए मैंने ये लास्ट प्रेयर के लिए कह लें कि टाइम को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश की है, कि हम लास्ट जो है कम से कम हमारे पास 20-25 मिनट हों, जिसमें हम पूरे ग्रुप के लिए, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, तो आप जरूर रिक्वेस्ट करें, जो भी प्रेयर करे उसको बताएं अनम्यूट करके, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू। बैक टू श्रेया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, मेरे बाजू को करनी है प्रेयर पेन के लिए ना। ओके, हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖਾਂਸੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਿਓ।
Sister ਅਮਨਦੀਪ Sister Amandeep. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਸਰਾਫੀ मेरे हथा वास्ते दुआ करो हाथों के लिए जी, हाथों के लिए और सर के लिए, सर में पे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਅੰਜਨਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੇਟ ਲਈ। Hallelujah. Praise the Lord. आए हम एक दफा फिर खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए, आज के सारे कलाम के लिए, कि आज जो खुदावन ने हमें बताया है, जो भेद उसने इस फिलदिल्फिया की कलीसिया पर जो उसने खोले हैं, कि वो जो खुदावन हमारा खुदा है वो कुदूस है, वो पाक है। इस बात के लिए हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि उसने ये भेद आज हम पर भी अयां किया अपने कलाम के वसीले से। अगर कहीं हम भूल गए, लेकिन आज हमें खुदा का कलाम हमें बता रहा है, यीशु मसीह खुद हमसे बातचीत कर रहा है, खुद हमसे बात कर रहा है कि मैं कुदूस हूँ, मैं महान हूँ, मैं उत्तम हूँ, मेरे जैसा कोई पाक नहीं है। उसने खुद एलानिया तौर पर कहा था कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। आए जब वो हमारा खुदा पाक है, साफ है, प्योरीफाई है, और उस जैसा कोई खुदा है ही नहीं है। वही अल्फा और ओमेगा, वही इब्तिदा और इंतहा, और वही है जो दाऊद की असल और नस्ल है। आए हम उसी खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे खुदा जैसा कोई खुदा नहीं है। वही है जिसने आज हमें ये बताया है कि उसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता, और उसके बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। यानी उसके पास कुल इख्तियार है, उसके पास हर तरह कुल इख्तियार वो रखता है। और जो उसने हमें सिखाया है कि वही जो कुंजियां हैं वो उसके पास है, और क्योंकि यानी वो हर मुकम्मल तौर पर अपने जो इख्तियार रखता है, मुकम्मल कंट्रोल जो है वो आसमान का, खा जमीन का, हर इख्तियार, हर कंट्रोल उसके पास में है, उसके हाथों में है। सो हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा खुदा ही हर चीज पर कादिर है, और वो अपनी कुदरत से आसमान और जमीन को संभाले हुए है। ये उसकी बड़ी कुदरत है कि उसने आसमान को बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी तंबू के उसने संभाला हुआ है, अपनी कुदरत से, अपने हाथों से उसने संभाला हुआ है। ये उसकी कुदरत है ये, और कि वो हमारा खुदा और हम उसके लोग हैं, और वो हमारा बादशाह है। आज उसने हमें सिखाया कि दाऊद तो इस्राएल का बादशाह था, लेकिन हमारा खुदा कुल कायनात का बादशाह है। वो उसकी बादशाही कभी ना खत्म होगी। आए खुदावंत का शुक्र अदा करें, हमारा खुदा ऐसा बादशाह है जो जिसकी बादशाही कभी ना खत्म होगी, और जिसकी बादशाही में हम सब बुलाए गए हैं, हम सब शामिल होने के लिए बुलाए गए हैं। हम सब ने उसी में इसीलिए हमने उसमें बपतिस्मा लिया है, हमने इसीलिए उसमें पाक रूह का बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा लिया है, हमने रसूलों की तालीम पाई है, हमने नबियों की तालीम पाई है, हमने यीशु मसीह के नाम की तालीम पाई है। आइए खुदावंत का शुक्र अदा करें। और यस लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, वंडरफुल लॉर्ड, यस माय लॉर्ड। आइए खुदावंत का शुक्र अदा करें कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है, ऐसा बड़ा बादशाह है जो जिसकी बादशाही को आखिर नहीं है, जो ना कभी मिटेगी और ना मिटेगी। हर चीज मिट जाएगी, हर चीज फना हो जाएगी, लेकिन मेरा और आपका खुदा कभी उसकी बादशाही कभी ना मिटेगी, और उसके लोग कभी ना फना होंगे। वो हमेशा उसके साथ रहेंगे, वो हमेशा उसके साथ तख्त पर बैठेंगे, जो अपने आप को दुल्हन की तरह तैयार कर रहे हैं, जो अपने आप को प्योरीफाई कर रहे हैं, जो अपने आप को सेंटिफाई कर रहे हैं। आए खुदावंत का शुक्र अदा करें, आए खुदा से कहेंगे क्या खुदावंत तू आज मुझे प्योरीफाई कर, तू आज मुझे सेंटिफाई कर, और अब बाप जो तू आज ये नेमत मेरी जिंदगी में अंडेलना चाहता है, यानी खुदावन के खौफ की रूह, तो आए खुदावन से कहेंगे क्या खुदावन ये देख है बाप, हम तेरा कलाम बताता है कि जब तेरा खौफ मेरे अंदर होगा तो मैं हर तरह की बदी से मैं दूर रहूंगी, मैं हर तरह के गुनाह से दूर रहूंगी, मैं हर तरह के जिस्मानी काम से दूर रहूंगी, मैं हर तरह के दुनियावी काम से दूर रहूंगी, मैं हर तरह के दुनियावी
दुनियावी कामों से और दुनिया की उलझनों से दूर रहूंगी, जो मुझे तुझसे दूर ले जाती हैं। मैं उन तमाम बातों से, कामों से, उन तमाम तालीमात से दूर रहूंगी, उन तमाम स्टडी से दूर रहूंगी जो मुझे अब आप तुझसे दूर ले जाती हैं। बल्कि अब आप मैं तेरा डर, तेरा खौफ मानते हुए बाप तेरे साथ चलूंगी, तेरे हुक्मों को मानूंगी, तेरे साथ चलूंगी अब आप। हालेलुया रे बे 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 तेरे रे शिंदे बे रे सिरी, यस माय लॉर्ड, हालेलुया। जोरे बे रे सिरी शिंदे बे रे सिरी, और बे रे शिंदे बे रे सिरी। आए यीशु के नाम को, उसके नाम को चाहे, उसके नाम को ऊंचा करे, उसके नाम को पुकारे, उसे कहे कि अब आप तो आज मुझे क्लेरिफाई कर, आज मेरे अंदर अपने मेरे पूरे ग्रुप में अब आप अपने डर, अपने खौफ को अंडेल दे, इस रूह को मेरे अंदर अंडेल दे, इस रूह का मेरे अंदर काम करने दे, ताकि मैं हर तरह की बदी पर गाली पाऊं, ताकि मैं जिस्मानी ना रहूं, ताकि मैं दुनियावी ना रहूं, बल्कि अब आप मैं तेरे साथ है जब तू आए, जब आप मैं एकदम तेरे साथ हवा में उड़ सकूं, तेरे साथ है तेरा इस्तकबाल कर सकूं, और यीशु मसीह के नाम से, यस माय लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उसने हमने सुना है कि उसने हमें नेक अमाल के वास्ते पैदा किया है, नेक कामों के वास्ते पैदा किया है। आए खुदावंद से कहें कि अब आप मैं ना दाएं मुड़ूं ना बाएं मुड़ूं, बल्कि मैं सीधी रहूं, मैं सीधी तेरी सलीब पर तकती रहूं, यीशु के नाम से बाप। और तेरा डर, तेरा खौफ मानते हैं बाप, दामन तेरे साथ चलो बाप, तुझसे प्यार करूं, रूह बदन जान से, दिल की सारी सच्चाई से, दिल की सारी गहराई से अब बाप मैं तेरे साथ चल सकूं, यीशु मसीह के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के नाम में आज खुदावन हम तेरे डर, तेरे खौफ को खुदावन जिसके वसीला से खुदावन है बाप हम गुनाह से किनारा करते हैं, हम तौबा करते हैं, हम बाप माफी की तरफ बढ़ते हैं, तो आज वही बाप डर और खौफ की रूह हमारे अंदर, हमारी जिंदगी में काम करना शुरू कर दे, यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जो हमें हर तरह की हरामकारी से, हर तरह की जिनाकारी से, हर तरह की बदकिरदारी से, हर तरह के खुदावंदा बाप झूठ से, प्रेम से, धोखे से बाप दूर कर दे बाप। ऐसा तेरा डर और तेरा खौफ है बाप, ऐसी दाऊन ये रूह हमारे अंदर आ जाए यीशु मसीह के नाम से बाप। इन द नेम ऑफ यीशु के नाम से बाप। बाप हमारा इल्म दाऊन नाकिस है, लेकिन तू दाऊन बाप अपने लोगों को अपने इल्म से, अपनी हिकमत से, अपनी खिरद से, अपनी फहम से, इन 7 रूहों से तू अपने ग्रुप को दाऊन भरना चाहता है यीशु के नाम से बाप। हम तेरे शुक्रगुजार है, यस मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरी सताइश करते हैं। वो जो 7 दाऊन चिराग दानों में दाऊन अब घूमता है, हम उसको खुशामदीद करते हैं, हम उसकी जय जयकार करते हैं बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। वो जिसकी आंखें देखती हैं, सारी जमीन का गश्त करती हैं, सारी जमीन को जांचती हैं, हम उसी के आगे झुकते हैं, हम उसी की तारीफ करते हैं, हम उसी को सराहते हैं, जिसके आगे हम खुली किताब के मानद हैं। और यस लॉर्ड, हालेलुया। यस माय लॉर्ड, खुदा तेरा ही शुक्र, तेरी तारीफ हो। यस लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, वंडरफुल लॉर्ड। खुदावन तेरा शुक्र, खुदावन हमारे दावन ख्याल तेरे सामने खुले हुए हैं, दावन हम तेरे से कुछ भी नहीं छिपा सकते। तो अब आप वक्त है दावन जिस तौर से अब आप आसमानी यूसुफ ने दावन अब आप गुनाह से अब आप किनारा किया और वो भागा, आज दावन दावन तेरा वो डर, तेरा खौफ मानते हैं, दावन तुझसे लगाव रखते हैं बाप, दावन वो गुनाह से भागा। दावन आज हम भी, हमारा ग्रुप भी बाप गुनाह को नो कहे बाप, गुनाह को दावन बाप दावन नो कहे यीशु मसीह के नाम से बाप। हम भागे हैं दावन अब आप गुनाह से भागे, ताकि जो तू बरकत, ताकि जो प्रॉस्पेरिटी, ताकि जो पाकीज़गी तू हमें अंडेलना चाहता है वो हमें दावन कसरत से आती चली जाए, हमें काम करना शुरू कर दे, ताकि दावन हम तेरे दिल के अंदर, ताकि हम तेरे कद के अंदर तक पहुंचे यीशु मसीह के नाम से बाप। जिस तरह बाप आस्तर को तैयार किया गया, आस्तर को दावन अब आप तेल से साफ और किया गया, दावन उन महीनों में दावन उसको अब तैयार किया गया, उसको नहलाया गया, अब आप मुख्तलिफ तरह के दावन खुशबुएं उस पर लगाई गई। आज दावन आज तेरे पाक रूह की जो दावन तेरे पाक रूह का जो तेल है, आज तेरे कलाम की जो बातें हैं दावन, आज तेरी हजूरी के वसीला से अब आप हमारी जिंदगी भी सैंक्टिफाई हो, आप प्यूरिफाई हो यीशु मसीह के नाम से बाप। हम धुलते चले जाए यीशु के नाम से बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस यस हालेलुया। और बेरे बेरे तेरा ही शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरी सताइश करते हैं। अब आप जिस तरह मरियम दावन है बाप दावन उन हालात में भी, उन दावन उस दावन दावन उस जमाने में भी बाप दावन वो मुकद्दस रही, दावन पाक रही बाप, वो पवित्र रही बाप, तमाम दावन गुनाह के बावजूद
बावजूद भी जो बदी थी दुनिया में बाप वो गुनाह थे, हर तरह की गिलाजत थी, गंदगी थी, नापाकी थी, नाराजगी थी, हरामकारी थी, जिनाकारी थी, बुत परस्ती थी, जादूगरी थी, बाप हर तरह का गुनाह था। तो भी खुदावन तूने उसको बाप महफूज रखा। और बाप जिसके बारे में जब उसने बाप तेरे बेटे को जन्म दिया, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। आज बाप जब वो कहती है कि मेरी जान मेरे मुनज्जी खुदावन से खुश होती है, और वो कहती है कि मेरी जान कि मैं अपने मुनज्जी खुदावन से खुश हूं, और वो कहती है कि मैं उसका कि मेरा डर उसकी जिंदगी में, मेरा डर उसका डर मेरी जिंदगी में है बाप। और खुदावन मैं तेरा शुक्रगुजार हूं खुदावन, ऐसा ही डर है बाप हमारी जिंदगी में, ऐसा ही खौफ हमारी जिंदगी में भी आ जाए। और जिसके बारे में बाप मरियम बोल उठी कि खुदावन पुष्ट दर पुष्ट जो तुझसे डरते हैं, पुष्ट दर पुष्ट है बाप, खुदावन तू उसको संभालता है, उनकी नस्लों को संभालता है, अब आप उनके बच्चों को संभालता है। अब आप हम तेरे शुक्रगुजार है। आज वही पाकीज़गी, आज वही हॉलीनेस है बाप, आज वही है बाप डर और खौफ है बाप हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही आए, ताकि हम भी अब गिलाजत में भी रहते हुए, गंदगी में भी रहते हुए, नापाकी में भी रहते हुए, जो दुनिया में है बाप, हम अपने आप को मरियम की तरह अलग कर सके बाप, और तू हम में पैदा हो। और यीशु मसीह के नाम से बाप, यस माय लॉर्ड, हालेलुया, यस लॉर्ड, तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। और बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं, यस तेरा शुक्र हो। अब बाप आसमानी तू हमें प्यूरिफाई कर, तू हमें सैंटिफाई कर बाप, तू हमें धो दे बाप, धो के दान पाक और साफ और प्यूरिफाई कर बाप। हमारी गिलाजत, हमारी गंदगी, हमारी नापाकियां दावन हमसे दूर होती चली जाए, और दावन हम तुझ में मजबूत होते चले जाए। तेरा ही शुक्र तेरी तारीफ हो। यस फादर गॉड, तेरा शुक्र अदा करते हैं, अल्फा और ओमेगा, इब्तदा इंतहा। अब यहूदा के बब्बर हम तुझे सलाम करते हैं, हम तुझे सिजदा करते हैं। अब आप तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम सारा जलाल बाप तेरे यीशु नाम को देते हैं। यस फादर गॉड, हालेलुया। इसी तरह अब आप एक दफा फिर अब तेरे कलाम के लिए, तेरी सारी बातों के लिए अब आप तेरा शुक्र अदा करते हैं। और जिन्होंने अब आप दरखास्तें दी हैं, अब आप सिस्टर अमनदीप के लिए, अब आप हम तेरी बच्ची के लिए जो भी उसकी प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से बाप हम उसको दूर होने को हुक्म देते हैं। और तेरी बच्ची की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, हम यीशु के नाम से तेरी बच्ची के घराने से, तेरी बच्ची की जिंदगी से अब आप इन तमाम बदी की कुव्वतों को, उनके जोर को, उसके असर को तेरी बच्ची की जिंदगी से, उसकी फैमिली से बाप खत्म होने का हुक्म देते हैं। इन द नेम ऑफ यीशु मसीह के नाम से बाप, राइट नाउ बाप दुश्मन का जोर टूटे, दुश्मन के जो दरवाजे उसने जो खोले वो बंद हो जाए, और दुश्मन जो तीर चलाए हैं वो कुंद और फेल हो जाए। यीशु के नाम से बाप तेरी बंदी तुझ में बड़े तुझे ग्रो करे, तेरी बच्ची अपने घराने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए, दुनिया के लिए, कौमों के लिए बाई से बाप प्रोस्पेरिटी, बाई से बरकत बाइस बने यीशु मसीह के नाम से बाप। इन द नेम ऑफ यीशु मसीह के नाम से बाप अपनी बच्ची को कुव्वत दे, जोर दे, ताकत दे, हिकमत दे, फहम दे, बर्दाश्त दे, सब्र दे बाप, ताकि तेरी बच्ची कभी पीछे ना हटे और आगे ही आगे बढ़े बाप। अपनी बच्ची को सब्र देना बाप, बर्दाश्त देना, कुव्वत देना। तू खुद कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी कुव्वत से, तुम्हारी बर्दाश्त से ज्यादा तुम्हें आजमाइश में ना डालूंगा। खुदावंद अपनी बच्ची को, लेकिन जब तू डालता है तू कहता है कि मैं उसमें से बच निकलेगा, रास्ता भी बताता हूँ। सो खुदावंद अपनी बच्ची के लिए वो तमाम रास्ते अब आप हम यीशु के नाम से खोल देते हैं बाप। जो दुश्मन ने बंद किया, जो दुश्मन ने खोला वो बंद कर देते हैं यीशु के नाम से बाप। हर तरह के डिस्टर्बिंग तेरे बच्ची की जिंदगी से दफा दूर करते हैं यीशु के नाम से बाप। अपने बच्चे को आजाद कर बाप, अपने बच्ची का निगहबान है बाप, अपने बच्ची का मुहाफिज है बाप, अपने बच्ची की फिक्र कर बाप। तुझसे क्या है कि मैं तेरा खुदा हूँ, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तेरे लिए अपना खून बहाया है, मैंने तेरे लिए कम 40 फोड़े खाए हैं, मैं तुझे अपने परम में छिपा लूंगा। और यस फादर गॉड अपने बच्चे के साथ बाप सिस्टर अमनदीप को हम सब मिलकर अब बरकत देते हैं, हम सब मिलकर अब तेरे लहू बचवा देते हैं, हम सब मिलकर अब तेरे हाथ में देते हैं, हम सब मिलकर कहते हैं कि खुदावन तेरे फरिश्ते उसको घेरे रखे, उसकी निगहबानी करें दावन, हर दावन तू उसकी हिफाजत निगहबानी करना यीशु मसीह के नाम से बाप। कोई भी मसला, कोई भी मुश्किल, कोई भी प्रॉब्लम बाप तेरी बच्ची को परेशान ना करने पाए, बल्कि तेरी बंदी तुझमें फतह जाब होते हैं बाप, खुशी से ललकारे, खुशी का नारा मारते हुए दावन तेरे नाम को जलाल दे सके, और तेरी बादशाही के लिए बहुत सा काम कर सके, और अपनी जिंदगी से दावन दुश्मन को शिकस्त दे यीशु मसीह नासरी के नाम से बाप। इन द नेम ऑफ यीशु नासरी के नाम से बाप दावन बाप अपनी बच्ची को ले और अपनी बच्ची के साथ है बाप। दावन तेरी हुजूरी कभी भी सिस्टर अमनदीप से दूर ना हो, दावन तेरी
तेरी आंखें हमेशा उसके लिए खुली रहे बाप आसमानी, खुदावन उसकी सारी मुश्किल प्रॉब्लम्स है बाप, हम तेरे यीशु नाम से बाप दूर कर देते हैं इन द नेम ऑफ यीशु के नाम से बाप। उसके वसीला से और लोग उसके तेरे पास आए, उसके वसीला से उसके बच्चे तेरे पास है, उसके वसीला से उसके दाऊन बाप, दाऊन उसका हस्बैंड तेरे पास आए, यीशु के नाम है बाप। तेरा हर शुक्र अदा करते हैं, हम साजलाल तेरे यीशु नाम को देते हैं। आज दुश्मन ने जो कुछ उसके लिए खोला है, अब आप हम उसको यीशु के नाम से बंद कर देते हैं, यीशु के नाम से बंद कर देते हैं, यीशु के नाम से बंद कर देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से बाप। Oh yes Lord hallelujah, दावन तेरी हुजूरी, तेरे फरिश्ते हमेशा तेरी बंदी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाप, यीशु के नाम से बाप। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ नाम से खुदा, तू ऐसा ही कर। इस तरह आसमानी पिता, हम तेरी हुजूरी में अब आप आसमानी अंजना को तेरे पास लेकर आते हैं खुदावन, उसकी सारी स्टडी में खुदावन, उसके सारी दावन बाप जो पेट का दर्द है, सारे स्टमक को, सारे जिस अंदर के सारे बाप सिस्टम का बाप हम तेरे पाक रूह के तसल्लुत में देते हैं बाप। तेरे बेटे यीशु के लहू को लगा देते हैं। अब आप अपनी बच्ची के साथ हो दावन, जो भी उसके प्रॉब्लम है, जो भी दावन मुश्किल में है, तेरी बच्ची जिस मुश्किल में प्रॉब्लम में है बाप, अपनी बॉडी के ताल्लुक से दावन वो तमाम वो मुश्किल तेरे यीशु नाम से दावन तेरी बच्ची की जिंदगी से काट डालते हैं। दावन वो प्रॉब्लम तेरी बच्ची की जिंदगी से काट डालते हैं, जड़ से दावन पेट की दर्द पर काट डालते हैं, हुक्म देते हैं इन द नेम ऑफ यीशु के नाम से बाप। तेरे बच्चे मुकम्मल तौर पर वापस पेट के दर्द से, इस स्टमक की दावन प्रॉब्लम से अब आप आजाद हो जाए यीशु के नाम से बाप। हम दुश्मन को शिकायत देते हैं इसकी जिंदगी से बाप, तेरी बच्ची आजाद हो यीशु के नाम से बाप, मुकम्मल तौर पर रहाई पाए, मुकम्मल तौर पर बाप आजाद की जाए, मुकम्मल तौर पर शिफा पाए बाप, और दुश्मन शिकायत का इसकी जिंदगी से बाप इन द नेम ऑफ यीशु नासरी के नाम से बाप। तेरे बच्ची की जिंदगी में तेरी रूह की दान, तेरे मसा को, तेरी हुजूरी को मांग लेते हैं। अब आप जब तेरी बच्ची स्टडी कर रही है, जब आप दावन देख बाप, दावन तेरी बच्ची दावन अब आप देख बाप, दावन अब तू ही है जो अब आप हिकमत के, फहम के, दानिश के दावन दरवाजे खोलता है, तू ही जा अब आप अता करने वाला है बाप। वक्त के बाद जब तेरी बंदी दावन तेरे साथ बाप, रूहानी तालीमात के साथ है बाप, रूहानी दावन अब आप दावन बातों के साथ दावन अब आप जब तेरी ये दुनियावी तालीम भी ले रही है, तब आप दावन इस पर हम तेरे पाक रूह की मोहर करते हैं। दावन अपनी बच्ची को सिखाने में तेरा पाक रूह की मदद रहनुमाई करे यीशु मसीह के नाम से बाप। दावन तो अपनी बच्ची के IQ लेवल को बढ़ाना, इंक्रीज करना इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ यीशु के नाम से बाप। दावन इसका IQ लेवल बढ़े बाप, जो कुछ करे याद करे, इसको याद हो बाप, और पाक रूह इसको याद करवाए बाप यीशु के नाम से बाप। ये ना कहे कि मुझे नहीं आता, बल्कि जब ये बैठे याद करने के लिए, लिखने के लिए एग्जाम में, तब जरा पाक रूह को समझाए, जरा पाक रूह को गाइड करे यीशु मसीह के नाम से बाप। तेरा हर शुक्र अदा करते हैं यीशु अपने लोगों के लिए, जिस अपने लोग अपने डरने वालों के लिए हर चीज की हर चीज पर आवानी से कसरत से रखता है। अब आप आज दाऊद तेरी बच्ची के लिए दाऊद इस दुनियावी तालीम में भी अब आप हम चाहते हैं दाऊद अपना हाथ बढ़ाकर अपनी बच्ची को ब्लेस कर यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस अपना हाथ बढ़ाकर इसको बरकत दे। हम सब इसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाते हैं, दाऊद अंजना की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हैं। तेरी बच्ची जब उसने ये कदम रखा है अपनी स्टडी में, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने में, दाऊद अपनी बच्ची को सरफराज कर, अपनी बच्ची को बरकत दे, अपनी बच्ची को सरफराज कर बरकत दे। तेरी बच्ची जहां जाए दुम ने सट ठहरे यीशु के नाम से बा, ये अपनी क्लास में दुम ने सट ठहरे यीशु के नाम से बा, ये जहां जाए सरफराज की जाए बा, ये जहां जाए बरकत पाए बा। हदों को बढ़ाते हैं, इसकी डोरियों को लंबा करते हैं यीशु मसीह के नाम से बा। यस माय लॉर्ड हालेलुया। ये अपनी कलीग्स में, अपनी दोस्तों में दाऊद है बाप आगे बढ़े बाप, दाऊद सरफराज की जाए बाप, ज्यादा दाऊद बाप इंटेलिजेंट बाप, ज्यादा समझदार है बाप यीशु मसीह के नाम से बाप। हालेलुया। यस माय लॉर्ड, यस फादर गॉड, तेरा शुक्र अदा करते हैं। दाऊद अपनी बंदी को ले और अपने घराने के लिए और दाऊद अपने नाम को जलाल देने के लिए और अपनी बादशाह की वसत के लिए दाऊद अपनी बच्ची को दाऊद इस स्टडी में भी दाऊद तू सरफराज कर, ताकि खुदावन अब तेरे नाम को जलाल देने का बाइस बने। और दाऊद इसकी सारी इस तालीम से दाऊद जब वो लेती है, हासिल करती है, तब तेरा ही नाम में जलाल पाए, दाऊद तेरी ही बादशाही फैले बाप। यस फादर गॉड हालेलुया। तेरा शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह बाप आसमानी दाऊद और भी जिनकी रिक्वेस्ट है अब आप हम तेरे आगे रखते हैं दाऊद। अब आप सराफीन के लिए
हम तो सराफीन के हाथों को अब आप तेरे पाक लहू में छिपा देते हैं। अब आप अपनी बच्ची के साथ और अपने सराफीन के हाथों को छू और शिफा दे। हम जो भी प्रॉब्लम है तेरे यीशु नाम से जाती रहे। यीशु मसीह के नाम से बाप हाथों में तेरे लहू को मांग लेते हैं, तेरी बड़ी कुदरत को मांगते हैं, तेरी हुजूरी को मांगते हैं। अपने बच्चे को टच करो, छू ले बाप, तावन तेरा शुक्र हो। और सारी हाथों का इन्फेक्शन, सारी हाथों की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। तावन हाथ पाक कर साफ हो जाए, हाथ प्योरीफाई हो जाए, हाथ धुल जाए तेरे लहू से बाप, यीशु के नाम से बाप। और दुश्मन ने जो कुछ है बाप दाऊद इसके हाथों पर किया है, जो कुछ वो करना चाह रहा है, हम उसके जोर को तोड़ देते हैं, हम उसके डोरियों का काट डालते हैं, हम उसकी रस्सियों का काट डालते हैं, जो उसके हाथों को तोड़ डालते हैं, जो उसकी तरफ बड़े हैं उसकी हाथों की तरफ बड़े हैं। यीशु के नाम से ये हाथ तेरे लिए हैं, तेरी प्रस्तुत करने के लिए, तेरे कलाम को पढ़ने के लिए, खुदावंद तेरी वडियाई बयान करने के लिए। खुदावंद इन हाथों को प्यूरीफाई कर और सेंटिफाई कर यीशु मसीह के नाम पर। तेरा है शुक्र, तेरी तारीफ हो। हम साथ चलते यीशु नाम को देते हैं। यस लॉर्ड हालेलुया। ओ जोरो जेनरेशन दे मेरे दूसरे अमन अब आप दूसरे महेंद्र के साथ और सनिया के साथ बाप, और भी जिन्होंने रिक्वेस्ट नहीं दी है बाप, तन वफा के साथ बाप, तन सारा जलाल बाप, हम तेरे यीशु नाम को देते हैं। अनम के साथ बाप, अनम का सारा इन्फेक्शन जो भी प्रॉब्लम पे तन पाँव में वो इन्फेक्शन यीशु के नाम से रिमूव हो जाए, यीशु मसीह के नाम से बाप। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ है बाप। हम सारा जलाल यीशु नाम को सब कुछ मांग लेते हैं मसीह तेरे बेटे यीशु मसीह के जिंदा जलाली का नाम में। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमीन। अब हमारे खुदा उनका फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, खुदा ने आज जो हमारा रूह है, जो खुदा उनके साथ रूह हैं, जिनके बारे में हम खुदा उनका मसा मांग रहे हैं कि खुदा हमें वो अता करे मसा। तो आज मैंने शुरू में ही जब सुरैया ने प्रेयर शुरू की तो मैंने देखा कि खुदा उनका मसा जो है हमारे ऊपर उंडेला जा रहा है, एक सफेद ऐसे जैसे कह ले एक शाइनिंग जो लिक्विड जैसा है वो हमारे ऊपर खुदा ने उंडेला है। और जो खुदा के डर और खौफ की रूह है जो कि हमें खुदा ने दी हुई है, लेकिन खुदा को हम इजाजत नहीं देते खुदा की रूह को कि वो हमारी जिंदगियों में काम करें। आज खुदा ने वो मसा जो है हमारे ऊपर उंडेला है, वो जोर, वो ताकत कि खुदावन के जोर से हम इसको इस रूह को अपनी जिंदगियों में काम करने दे। तो मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ। और खुदावंद की बंदी जब अमनदीप के लिए श्रेया प्रेयर कर रही थी तो मैंने देखा कि इसके चारों तरफ ऐसे जैसे बाढ़ जो है वो लगी हुई है, सफेद क्या कहते हैं झिल्ली जैसी जो है वो इसके चौगिर्द बनी हुई है। पहले मैंने इसको देखा कि जैसे एक जो चिराग होता है उसकी तरह ये जल रही है। अभी रोशनी ऐसे लाइक जैसे बहुत थोड़ी नजर आ रही है, लेकिन मैंने देखा कि इसकी जो गिर्द जो बाढ़ लगी हुई है वो बड़ी रोशन है। तो खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि जो भी इस बदी की कुफ्ते हैं या कुछ भी इसके पर असरात हैं या कुछ भी है, लेकिन खुदाउन ने इसको घेरा हुआ है। तो कुछ भी परेशानी है, बीमारी है, तो खुदावन ने इसको संभाला हुआ। इसके लिए हम खुदावन का शुक्र करते हैं। और अंजना के लिए जब प्रेयर कर रही थी तो मैंने देखा कि जो ऐसे जैसे मैंने देखा कि जैसे फिजा में कह लेंगे, आसमान में मैंने देखा है कि जैसे वाइट ही वाइट है जैसे। तो उसके अंदर जो है मैंने जिस तरह हमने सीखा था कि जो हिकमत का खुदा उनकी बुजुर्गी को जो पेश करता है खुदा उनके जो वाइट हमने देखा था कि जैसे दाढ़ी है, बाल हैं, वो हिकमत को पेश करते हैं खुदा उनकी। तो खिर्द की रूह को, इल्म की रूह को कि खुदाउन जो है कदीम से है, यानी वो उसी के पास हिकमत है। तो मैंने इस तरह देखा कि जैसे वो वाइट उसने ड्रेस पहना हुआ है और वाइट ही बाल हैं और उसके आगे जो है अंजना ऐसे जैसे बैठी हुई है और मैंने देखा कि वो उसने इसके ऊपर हाथ जो हैं रखे हैं। तो खुदाउन ने जो हिकमत की रूह है खुदाउन ने
का मसा जो है इसके ऊपर उंडेला है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जो भी दुनिया का या इल्म जो है हासिल करने, लेकिन खुदावंद की हिकमत जो है वो इसके अंदर काम कर रही है, या खुदावंद जो है अपनी हिकमत का मसा जो है उसने इसके ऊपर उंडेला है। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, और खुदावंद का जो मसा है आज हमारे ऊपर, जो खुदावंद के डर और खौफ का वो हमारे ऊपर उंडेला गया, इसलिए खुदावंद का शुक्र हो। और भी किसी को खुदावंद ने कुछ दिखाया है, कुछ टच किया है, तो वो शेयर कर सकते दुआ में या कलाम प्रेज में। गॉड। ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਸਟਮਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦਰਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ Praise ਸ਼ੁਕਰ God. ਹੋਵੇ। Praise God. Hallelujah. हाँ जी, किसी और को कुछ कहना है? नहीं तो फिर हम मीटिंग को बंद करें। जिनके लिए नहीं हुई, खुदावंद ने उनको भी टच किया। जी अमनदीप। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जी, जब रोटी और पानी के लिए दुआ कर रहे थे तब ऐसे झटका सा लगा, जैसे रोज ही लगता है ना, जैसे अंदर से कुछ निकलना चाहता है, Praise God. थोड़ा सा झटका Hallelujah. लगता है। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. Praise God. Praise हालेलुया, God. प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे। जी कुछ और कोई कुछ कहना चाहते हैं? सनिया, भाभी नीलम, कोई भी? सोनिया। पप्पे लिए भी नहीं हुई, सोनिया लिए भी नहीं हुई। चलो उसे याद रखेंगे। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहता है? नहीं तो फिर श्रेया आपने कुछ कहना? खुदावंद ने आपको टच किया? चलें ठीक है जी, फिर गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। गुड नाइट।